Hello everyone, this is BA Part 1st, Paper 2nd, Representative Indian Political Thinkers, and for today's this video topic is Gandhiji as philosophical anarchist. So start. Gandhiji was a philosophical anarchist and he was influenced by Leo Tolstoy and to some extent by Prince Kropotkin, and he criticizes state severely on moral, historical, and economic grounds. It is an institution based on violence, aiming at exploitation of the poor and the weak. As it kills morality, it should disappear as early as possible. And Gandhiji wrote in Young India, I quote him, the state represents violence in a concentrated and organized form. The individual has a soul, but as a state, it is a soulless machine. It can never be weaned from violence, and it can never be weaned from violence to which it was its very existence, and coercion should be used minimum in a good state. The people are governed the least. In the purest anarchy, there would be democracy based on non-violence. It should be a country of autonomous villages. It was an application of the principle of unity in diversity and diversity in unity. In principle, he was totally against the state, but looking to the prevailing conditions, he was not in favor to finish it immediately. A man is not so perfect in himself that he may do without the state. Presently, state and political power both are necessary. However, the scope of its activities must be reduced to minimum. In this way, he was in principle an anarchist, but in practice an individualist. As an individualist, he wanted the state that ruled the least, but he never wanted to finish the state by use of violent methods like Kropotkin and Bakunin. He was not an individualist of Western variety, which results in ushering in human capitalism, competition, and exploitation. प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं गांधी जी के राजनीतिक विचारों में कि किस प्रकार से गांधी जी उन्हें एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। गांधी जी एज अ फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट, दार्शनिक अराजकतावादी। तो जब हम लोग गांधी जी को एज फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय लियो टॉल्स्टॉय एंड टू सम एक्सटेंट बाय प्रिंस क्रोपोटकिन। वो प्रभावित रहे हैं अपने दर्शन में लियो टॉल्स्टॉय और प्रिंस क्रोपोटकिन, बाकुनिन, लियो टॉल्स्टॉय, क्रोपोटकिन, इनकी विचारधारा से वो प्रभावित रहे हैं, जहाँ पर कि राज्य को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, राज्य की आलोचना की जाती है नैतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक आदि आधारों पर। एज गांधी जी हिमसेल्फ हैज़ क्रिटिसाइज द गवर्न द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स, moral, historical and economic, and it is an institution based on violence aiming at exploitation of the poor and the weak. राज्य को उन्होंने एक ऐसी संस्था माना है जो कि हिंसा पर और जो गरीब और इस तरीक़ा का जो वर्ग है उनके शोषण पर वह आधारित है, और इसके साथ साथ ये मानव की जो नैतिकता होती है उसको भी ख़त्म कर देता है। और इसीलिए गांधी जी ने यंग इंडिया अपने उसमें भी लिखा है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो कि वायलेंस को, हिंसा को रिप्रेजेंट करता है, केंद्रित है, और इस तरीके से वो अपने केंद्रित और संगठित फोरम में हिंसा को वो रिप्रेजेंट करता है। और it works as an institution or as an device to exploit the poor and the weak section of the society. इसीलिए जब हम लोग एक अच्छे राज्य की, आदर्श राज्य की बात करते हैं तो एक आदर्श राज्य, अच्छा राज्य गांधी जी के अनुसार वह है जहाँ पर कि दबाव या बाध्यताएं हैं वो कम से कम हो, लोगों को किसी भी बात के लिए बातें करने की आवश्यकता है उनको इस तरीके से दी पीपल आर गवर्न द लिस्ट इन अ गुड स्टेट, द पीपल आर गवर्न द लिस्ट, एंड इन अ प्योरेस्ट एनार्की देयर वुड बी डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, जहाँ पर कि आपकी अहिंसा हो, हिंसा का किसी कोई किसी भी फॉर्म में हम लोग हिंसा को स्वीकार
नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी अ कंट्री ऑफ ऑटोनॉमस विलेजेस। स्वायत्त जो गांव है ये उनका देश होना चाहिए, उनके जो संस्था होनी चाहिए। और इस तरीके से यदि हम लोग गांधी जी को देखते हैं तो सैद्धांतिक रूप में थ्योरेटिकली ही वॉज टोटली अगेंस्ट द स्टेट। थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप में गांधी जी वो राज्य के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, बट जब वो प्रिवेलिंग कंडीशंस को देखते हैं, सर्कमस्टांसेस को देखते हैं, जो कि आपकी दशाएं हैं, उनको देखते हुए वे इस बात के फेवर में नहीं है कि राज्य को तुरंत ही समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि उनका ये मानना है कि एक व्यक्ति है वो भी खुद में इतना संपूर्ण नहीं है कि वह राज्य के बिना अपने सभी कार्यों का स्वतः संचालन कर सके। इसलिए हमें राज्य की आवश्यकता रहती है, लेकिन जो राज्य का कार्य क्षेत्र है या इसकी गतिविधियों का जो स्कोप है वो मिनिमम होना चाहिए, गांधी जी के अनुसार कम से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम लोग गांधी जी की विचारधारा को देखते हैं लाइक एनार्किस्ट एंड इंडिविजुअलिस्ट, तो हम लोग पाते हैं कि गांधी जी में हमें दोनों ही तत्व देखने को मिलते हैं, अराजकतावादी तत्व भी और व्यक्तिवादी तत्व भी। अराजकतावादी तत्व हमें तब देखने को मिलते हैं जबकि गांधी जी है राज्य को अस्वीकार करते हैं, लेकिन व्यक्तिवादी तत्व हमें तब देखने को मिलते हैं जबकि हम राज्य को बनाए रखते हैं लेकिन उसका कार्यक्षेत्र हम मिनिमम कर देते हैं, बिल्कुल कम से कम कर देते हैं, राज्य को हम लोग नष्ट नहीं करते हैं और उसके साथ ही व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से जो अहिंसावादी गांधी जी हैं, जो हिंसा को किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं करते हैं, उनका ये मानना है कि मनुष्य वर्तमान में इतना संपूर्ण नहीं है कि वह अपने सब कार्य सभी आवश्यकताएं स्वतः पूर्ण कर सके, इसलिए हमें राज्य की आवश्यकता होती है, लेकिन राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो हमें कम से कम रखना चाहिए। इस तरीके से गांधी जी अराजकतावादी विचारक होने के साथ साथ एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।